and whether there is trouble that is brewing for the Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. The Election Commission has sent its opinion to the Jharkhand Governor Ramesh Bais on a plea seeking Chief Minister Hemant Soren be disqualified as an MLA for violating the electoral law by allegedly extending a mining lease to himself. The Election Commission's opinion was sent to the Jharkhand Raj Bhavan in a sealed cover this morning. The Jharkhand Governor had earlier referred the matter to the poll panel. Let me go across to Akhilesh Sharma for more details on this. Akhilesh, what are the options really that the governor has at this juncture? Is he expected to go exactly by what the Election Commission recommends? That's right, Maha. In fact, the governor has very limited options in such scenarios. We have been told by the sources that the governor who was in Delhi has already reached Ranchi and he is reaching Raj Bhavan shortly, and he will go through the Election Commission order which has been sent in a sealed envelope, and he will go through that order, and the sources are indicating that he is likely to issue the notification for the disqualification of the Chief Minister Hemant Soren from the Assembly shortly after that reading and going through that Election Commission order. The sources have already cleared that the Election Commission has in fact recommended that he should be disqualified from the Assembly. So basically trouble ahead for the Chief Minister Hemant Soren, though he has denied receiving any kind of communication either from the Election Commission or from the governor. But of course, so far the Election Commission has sent order only to the Governor House, and that's why we have to wait and see what kind of notification is issued by the governor once he reaches his office and goes through the Election Commission order. But of course, the governor has very limited options because in this case, like for the Office of Profit case, he has to go by what the Election Commission says, because the complaint received by the governor was forwarded to the Election Commission, which actually acquired the role of quasi-judicial body. It had invited both the parties for arguments, it had hearing and heard both the parties, and they reserved the order, and now it has decided on the matter, and the envelope has the order has been sent through a sealed envelope. All right, Alok is also joining us with more details. Akhilesh, I'll request you also to stay on with us because there are reactions already coming in. Let's listen into the first reaction and then we'll talk about what the Chief Minister has said in this regard. नहीं, अब तो ये काफ़ी सार्वजनिक हो गया है। मैं काफ़ी मीडिया से सुबह से बात कर चुका हूँ और जितने भी पत्रकार महोदय आए हैं उन्होंने मुझे खुलेआम कहा कि उनकी सदस्यता चली गई है। यही इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है गवर्नर साहब को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बीजेपी ने ही ये कंप्लेन किया था गवर्नर साहब को और गवर्नर साहब ने वो इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन में पिछले 4 महीने से केस चल रहा था, उनके भी वकील आ रहे थे, हमारे भी वकील आ रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ने यदि ये रिकमेंडेशन दिया है जिसमें उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो आज जो है जश्न मनाने का दिन है। झारखंड को मुक्ति मिल गया, और मैंने कहा था कि अगस्त पार नहीं होगा, अगस्त पार नहीं हुआ। आज 25 अगस्त है, अभी और भी 7 दिन है। 7 दिन में मुझे लगता है कि झारखंड में और भी बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि आप लॉ और इलेक्शन वगैरह कमीशन को अच्छे से समझते हैं, हमारी जनता को ये बताइए कि क्या केस था, किस कारण से हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने? केस ये है कि जब हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो चुनाव लड़ते हुए हम घोषणा करते हैं कि हमारे पास ये है, ये है, ये है, ये है। उसमें से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये उनके पास ये माइन्स है, ये उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, माइन का जो समय बढ़ाना था, समयावधि बढ़ानी थी, उसको उन्होंने माइन्स मिनिस्टर के नाते खुद ही बढ़ा दिया। अब आप समझिए कि इससे बड़ी बैंकरप्सी या इससे बड़ी करप्शन या इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? क्या आप खुद माइन्स मिनिस्टर हो, माइन्स ले लेते हो, माइन्स की अवधि बढ़ा देते हो, मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री साइन कर देते हो, व्यापार में कर लेते हो। जब आप मंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं तो ये नियम है संविधान का कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अपने व्यवसाय में नहीं लग सकते हो। आपको व्यवसाय नहीं करना है, आपके लिए सभी बराबर है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसके कारण कि भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेन किया था। उस कंप्लेन का संज्ञान लिया था माननीय गवर्नर साहब ने, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में काफ़ी जिरा हुई। कई एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कोर्ट हुए, और फाइनली चुनाव आयोग ने यह माना कि ये बहुत बड़ा क्राइम है, करप्शन है, और इसके आधार पर उस व्यक्ति की सदस्यता जानी चाहिए जो कि हेमंत सोरेन की गई। झारखंड की जनता के लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि किसी मंत्री की सदस्यता नहीं गई, एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री की सदस्यता? देखिए, नैतिकता का तकाजा ये है कि मिड टर्म पोल की तरफ जो है हेमंत सोरेन को जाना चाहिए, असेंबली डिजॉल्व होना चाहिए और 81 की 81 विधानसभा में चुनाव होना चाहिए।
क्या इसकी मांग करेगी भारतीय जनता पार्टी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से मांग कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग, बालू गिट्टी दारू का जमाना गया, मिड डे मील स्कीम का जमाना गया, दलालों का जमाना गया, कल AK-47 जिस तरह से पकड़ाया है। और आपके लिए बेहतर यह है कि पिछले 3 साल में आपने जो झारखंड को लूटा है और आपको लगता है कि यह लूट हमारे लिए जेन्युइन है, तो जनता, डेमोक्रेसी में जनता की अदालत ही यह फैसला करती है। इसलिए हमको और आपको दोनों को जनता के बीच में जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल। Clearly trouble brewing there for Hemant Soren, but the Chief Minister has now stated this in a statement that he's put out. It apparently seems, is what he's saying, that BJP leaders, including a BJP MP and his puppet journalists, have themselves drafted the ECI report, which is otherwise a sealed cover report. This blatant misuse of constitutional authorities and public agencies and its complete takeover by the BJP headquarters in the Deen Dayal Upadhyay Marg in this shameful manner is unseen in Indian democracy. Meanwhile, there is trouble for the JMM-led government there in Jharkhand. What are the other parties saying? Let's listen in to the Congress party. देखिए, ये तो कल रात से ही शुरुआत हो गया था। मैंने कल भी बोले, आज भी बोल रहे थे कि जब सीलबंद बापा में कोई भी चीज़ आया है तो सब सार्वजनिक नहीं होना चाहिए। इसका करना है जिनको मोहम्मद राज्यपाल जी को, वो तो है भी नहीं, वो जब करेंगे तब देखेंगे। लेकिन आज इस बात को लिए हम जानकारी करने के लिए आए थे सीएम के पास कि आपको क्या नोटिस मिला कि नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा अब तक मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। जैसे आपको जानकारी है उसी तरह हमको भी जानकारी प्राप्त हुई है और आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे। सर, लेकिन क्योंकि अब पूरी तरह से जिस तरह से मामला जा रहा है, अगर फैसला आपके खिलाफ चला जाता है तो हमारा संख्या बल है। हाँ, और हमारी सरकार रहेगी, ये बात को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन चेहरा कौन होगा? चेहरा होगा, तय करेंगे। लेकिन जेएमएम कैंप से खबर आ रही है कि एक बार फिर हेमंत की ही ताजपोशी की हो तैयारी सकता है, इसमें भी हो सकता है। और जरूरत पड़ी तो विधायकों की परेड की कराई जाएगी राजभवन जब जरूरत में। होगा तब, अब तो जरूरत अभी है नहीं। लेकिन पहली कोशिश आप लोगों को हेमंत सोरेन की ही दोबारा ताजपोशी की होगी या नए चेहरे की? निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हेमंत सोरेन, अगर ऐसा परिस्थिति बनती है तब वही मुख्यमंत्री।